is a one numerical. You just try to solve it. Wait. And whatever the topic is rest from this unit, I will skip for now. ओके, इफ़ टाइम परमिट्स सो हम उसे लास्ट में कवर कर लेंगे जब हमारे बाकी यूनिट कवर हो जाएंगे. ओके, because we have only 23 lecture in our hand before your end semester exam, and there are total 5 units, right? So still हम second unit में ही हैं अभी, एंड थर्ड यूनिट इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ा भी है. ओके, so from tomorrow I will start that unit. First of all, I will take your test and start that unit. Okay, so whatever the part is left for this unit number 2, uh, I will cover at last if time permit. अगर नहीं होता है तो आप उससे कर लो खुद से. वैसे भी दैट टॉपिक विल बी कवर इन योर फ्यूचर एम माइक्रोबिट एंड इन योर एट सेमेस्टर, राइट? एट सेमेस्टर में भी आपको ये है ट्रांड्यूसर एंड सेंसर, एक टॉपिक एक सब्जेक्ट ही है आपको. एंड इन माइक्रोग्रिड इंटरफेसिंग में भी आपको इसमें यूज़ ये पढ़ोगे आप. ओके, सो फॉर दिस टाइम आई विल skip this topic and cover this all rest of the part of your syllabus, and at the end if time permit I will cover this also. Okay, so आज के लिए ओके, सो यहाँ तक देखा था हमने, राइट? एंड these are the construction for your city. These are designed into these two ways. First is wound type city and second is bar type city. So in bar type city, the primary turns is equal to one. Okay, because this is only single bar, so this is comes treated as one turn, and the secondary is uh, depending on your conditions, right? कि आप कितना टर्न्स उसमें रखना चाहोगे. सो फॉर दैट द voltage will be set according to that number of turns. Okay, because प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी जो आपका प्राइम दिस सिटी है, दिस इज नथिंग बट योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट? ओके, सो वेट अ मिनट गाइस. ओके, नाउ so just read it out. The simple the construction which is this is a also this also a transformer. The only one thing is that instead of this primary side for the bar magnet, bar type city, only single turns are present, right? The working is same. Okay, transformer work as a Faraday's law of mutual inductance, right? So it is also work on the principle of that mutual inductance, and whatever the fluxes are mutually coupled to each other, depending on their number of turns, the potential will be divided, right? And the current will be set accordingly, which is I1, which is nothing but your primary current into primary voltage is equal to the secondary current of secondary voltages. Okay, so concept is same, working is same,
The concept is that you need to step down the current for secondary side and set that current to the 5 ampere, which is a measurable by any uh, emitter, right, for this city. And the same concept for your PT. And these are the different kind of shapes of your transformer. Okay, primary primary is nothing but your conductor. Primary is nothing but your conductor. Okay, and the secondary is nothing but your this which you want to measure. ये जैसे इस शेप में है तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा. प्राइमरी कंडक्टर गो फ्रॉम दिस साइड इनसाइड दिस राइट. सिमिलरली ऐसा इसमें भी होगा. Okay, and the same for this. Okay, primary is a conductor, this is a transformer. So उसमें primary और secondary दोनों होंगे. Okay, and for this current transformer में it is connected in series with your main transformer. And the secondary से आप this current measure करोगे with the help of mm, step down with the help of step down transformer, right? And itself it's called as a CT. Sorry, step up transformer is called as a CT. Now ये सब इसका फीचर्स दिए हुए हैं, इसे एक बार पढ़ लेना. And this is one more method which is clamp on emitter. So in that method also you see the structure. This is your main conductor, which is a bar conductor, work act as a primary. And this is the structure which is seen in our side, this work as a secondary. And this is a trigger switch, okay, which is splitting your core. So depending on the split in the direct this location, the flux linkage will be vary. Okay, so by this way, when you adjust with the help of this mm, this separating to this secondary winding. ओके, ये यहाँ से स्प्लिट होता है सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी जो है आपका. तो डिपेंडिंग ऑन दैट द फ्लक्स वेरिएशन इज ऑल्सो हैपनिंग with these two. So accordingly the this secondary current is also changing, you can say that. So there are so what happened where this combination is used, which is given in this in theoretical format. See, the current transformer with a single conductor is used for the combination of bridge rectifier and the DC milliammeter to produce the very useful service. The core of the transformer can split into the help of trigger switch. Therefore, core clamp around the conductor measure the current. So this arrangement avoid the necessary breaking the circuit in order to current measuring device instead of the uh, service with the measure used to measure the value of current flowing. The changing of the shunt resistance in milliampere is this. These are the range. Okay, so for this millimeter range, you can obtain from 0 to 5 ampere to 0 to 600 ampere up to this. So that is the advantage for this. And for that, what is used here? There is a switch. Now see at this location, this switch position is this. So how to current flowing from this side? Current flowing from this side to this side. Okay, and so at this position this side, and the current is flowing from this side. Okay, from this side and from this side ऐसा जाएगा, राइट. तो इससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टैपिंग योर करंट फ्लोइंग फॉर सच अ लोकेशन, सच अ पाथ. ऐसे पाथ से आपका जाते जाएगा, ठीक है. एंड द बाइंडिंग पोस्ट फॉर द वोल्टेज रेंज. सो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो यूज दिस नाउ.
ओके, अगर आपको ये डायरेक्ट यहाँ ही से मेज़र करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस स्विच जस्ट लाइक दैट। ये ऐसी पोजीशन में होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ से जैसे आता है, सो यहाँ से जाएगा ना, ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा। ओके, सो ऐसे डिफरेंट इसके दिए हुए है ये पाथ। आवर एम टू मेजर दैट हैवी अमाउंट ऑफ करंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंडरी करंट कितना 0 to 5 एम्पियर रहता था। सो बाय दिस कॉम्बिनेशन यू कैन एबल टू मेजर हाउ मच, 0 to 600 एम्पियर तक आप इससे ऑप्टेन कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर मैं एक बार और देखूंगा, आप भी देखो इसको। नाउ the secondary path of the circuit, effect of secondary open circuited। सो क्या ये तो देख चुके थे राइट, पहले भी हमें ओपन सर्किट नहीं रखना है सेकेंडरी का, दिस सीटी का सेकेंडरी पार्ट। व्हाई? बिकॉज द if you energize the primary side with the help of primary current which is a heavy current flowing in primary side, right? So for balancing, अगर आपने सेकेंडरी ओपन रखा, करंट वहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, तो ह्यूज ईएमएफ विल इंड्यूस इन द सेकेंडरी साइड एज वेल। सो ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ सॉरी एमएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? एमएमएफ इंड्यूस हुआ, सो उसमें जो आपके आइसोलेशन इंसुलेशंस वगैरह उसके बर्नआउट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो ह्यूमन हजार्ड भी हो सकता है। सो फॉर अवॉइडिंग दिस ऑल दिस कंडीशन, you are always short circuit the secondary current। So the conceptually already given in theoretical format here, just go through that and some more points also mentioning here। okay, so ये important है, इसको देख लेना एक बार। And which types of method is using for the measurement of greater than 100 kilovolt? लास्ट टाइम बताया था मैंने, which is a capacitive division method, right? Okay, this is a this is your potential transformer। okay, इस टाइप से इसका कुछ स्ट्रक्चर है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑलवेज आपके लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑलवेज नियर द कोर रहता है, राइट? एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आउटसाइड द कोर रहता है। वाई नियर द कोर रहता है? बिकॉज द इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड लेस, and if high voltage winding is placed in near the core, then costing will also increases, and it is not economical as well, and it is like and द वाइंडिंग में भी बर्न आउट, राइट? इसके आपका एल वी साइड का, लो वोल्टेज साइड का ये भी हो सकता है शॉर्ट सर्किटेड, बिकॉज ये ऑलरेडी इसके साथ में रहेगा तो इसको कूलिंग नहीं मिल पाएगा ना। सो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट वे to keep low voltage winding near the core and high voltage winding outside the core। So depending on that, you can connect this your bushing side, so which bushing is carrying the primary bushing is carrying your high voltage side, okay, which is work as your primary side, and this these are the your secondary side। So the working is also provided here, and the range is also given here, see? So in a potential transformer, or you can say two winding transformer, is useful for measuring the voltage level, uh, used for high voltage, for example for voltages of 100 kilovolt and above, okay, high voltage potential transformer। so इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, एंड these आर द पैरामीटर जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे है, एक बार पढ़ लो इसको।
Now, which types of transformer are used for above 100 kilovolt phase? So for this phase, we are refer this capacitive potential transformer. So capacitive potential transformer we are generally prefer for measuring the voltage greater than 100 kilovolt. S- The conventional electromagnetic potential transformer become expensive owing the insulation requirement. A less expensive alternative is a capacitive voltage transformer. सो व्हाट हैपन इन दैट, ये जैसे कि आपने ये प्राइमरी साइड हो गया, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, आपको वोल्टेज मेजर करना है, बट आवर प्राइमरी साइड हैज़ यूज प्राइमरी voltages is very large, right? You can say that कि आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है. So what happened in that, you are placing make arrangement of this capacitive, you are placing the capacitive in such a way that कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर है, सो आपका वोल्टेज जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाए फॉर ईच स्टेप. At last, you are measuring a desirable quantity of voltages across this by using this auxiliary transformer. So ये auxiliary transformer nothing but your आपका PT है, आप बोल सकते हो इसको PT भी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, ये जो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे सेकेंडरी साइड ऑफ पीटी है, इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी विच इज़ द रेंज ऑफ वन, यू कैन से दैट 110 वोल्ट. And here you can also see here, this is your step down transformer. So np is greater than of ns फॉर दिस साइड, एंड दिस एल, एल क्या हो जाएगा, एल इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट सी the auxiliary transformer consists of this L, which is maybe consist of wholly or partly the leakages reactance of the windings and auxiliary transformer. एक तो ये हो जाता है. Then the value of this inductance L may be adjusted to equal to this 1 upon omega square C1 plus C2, so that the voltage drop due to the current drained from the divider is largely compensated. सो जितना भी यहाँ पे लीकेजेस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए दिस एल यहाँ पे मेंशन किया जाता है. ओके, नाउ ये जो सी है वो ओवरऑल सी है, एंड दिस सी टू, एंड बोथ आर यूजिंग इन सच ए फैशन, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं. एंड इसमें जो एक एक जैसे ये सी वन में कंसिडर करता हूँ, सो ये इक्वल इसके रहते हैं. ओके, सो इक्वल इसके रहते हैं, बट ये नंबर ऑफ कैपेसिटर आर गिवन इन दिस रेंज. सो ईच स्टेप में आपको पता है जैसे कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है इन सीरीज. यहाँ पे सीरीज में ही है, ये सब पूरा सीरीज में ही कनेक्शन है. या आप सिर्फ इसको पैरेलल में इसमें ये ऐड कर दे रहे एज अ for measuring your this voltages, right? And then after uh, reduce that high voltages to the permissible value, which is you measure with the help of this pt. Okay, so this is nothing but your क्या होता है ये, या डिवाइड हो जाता है यहाँ से. सो पहले ओके, तो ये डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, यू कैन कैलिब्रेट, यस, या आफ्टर दैट यू कैन कैलिब्रेट दिस स्केल टू योर प्राइमरी साइड, बिकॉज ये नंबर ऑफ जितने भी कैपेसिटर दिस इज नोन टू यू, एंड एक के अक्रॉस आपने इतना सेट वोल्टेज सेट निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ जितने ये है, राइट, जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे कनेक्टेड है, देन यू कैन सिंपली कैलिब्रेट दिस स्केल विद दिस ऑल, बिकॉज एक का आपको पता चल गया तो बाकियों का भी पता चल जाएगा, राइट. एंड सम ऑफ ऑल दिस थिंग इज नथिंग बट योर प्राइमरी साइड वोल्टेजेस. ओके, दैट कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर दिस कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ओके, और इसे आप डिटेल में इसमें पढ़ेंगे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में, आपको ये कॉन्सेप्ट होगा फॉर मेजरिंग द ग्रेटर देन ऑफ 100 किलो वोल्ट, यू आर गोइंग फॉर दिस कैपेसिटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. एक एग्जांपल भी दिया है वो यहाँ पे देख लो, 100 10 के का सबका आ जाएगा इसमें, जैसे 10 के 10 के
का एक हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. ओके. सो एंड दिस ड्रॉप इज ऑल्सो फर्दर रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव ट्रांसफार्मर विच इज सेकेंडरी इज 110 वोल्ट. अब ये 110 वोल्ट अगर यहाँ पे फुल स्केल हो गया तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 10K हो जाएगा. सो 10 10 ऐसे नंबर ऑफ ये निकाल लो तो टोटल आपको निकल जाएगा कितना है. Okay. Now, these are the characteristics of potential transformer. So, just read it out कि क्या क्या इसके characteristics है and what effect is happening when the change this parameter. Okay. And and so these are the terms. Okay. So these are some example is given in this. Just go through all these example, and there are some testing is also given in this year for this CT and PT. So I just uh, uh, ओके, एक बार इसे देख लेना, टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कि कौन कौन सी हम टेस्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है, एंड जो इसके टेस्टिंग के मेथड है वो मैं स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बहुत सारे मेथड है इसमें. और आपका मेनली क्या किस लिए यूज़ करते हैं ये आपको, आपका रेशो एरर यूज़ फॉर द रिड्यूसिंग द रेशो एरर एंड दिस एंगल एरर. ओके. सो टेस्टिंग जो मेथड है वो हम रेशियो एरर और रेशियो एरर एंड दिस आपका एंगल जो एरर है उसे फाइंड आउट एंड रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या पॉसिबल वे हो सकता है. ओके. सो जस्ट गो थ्रू दैट. इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट रीड इट आउट. नंबर ऑफ मेथड है यहाँ पे, बहुत सारी है. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में भी है एब्सोल्यूट नल डिटेक्शन. ओनली सिर्फ एडजस्टमेंट किया है उन्होंने, जो आपका जो ये एंगल जो डेविएशन होता था ना उसी से रिलेटेड है. ये आपको एडजस्टमेंट किया है. जैसे कि देखो, मैं जो आपको ऊपर बता रहा था ना, जैसे इसका प्रोटीन ये नलीफाई करने के लिए ये ऐसे आर्टिफिशियल ये अरेंजमेंट किया जाता है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो यहाँ से नलीफाई हो जाता है इस टाइप में. ये नलिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं ये सब. तो इससे आपका जो एरर आता है ना वो रिड्यूस हो जाता है. ओके. नाउ ओके. सो ये इसे सॉल्व करके देखो. ये आपका ये भी एक सॉल्व ही एग्जांपल है, बट ट्राई करो इसे भी. ये एक ट्राई करो और इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आज का लिए क्लोज करते हैं हम. और कल मैं आपका पहले तो जितना भी मैंने न्यूमेरिकल टाइप में आपके यूनिट 2 एंड यूनिट 1 में प्रॉब्लम लिए है उस पर एक 10 मार्क का क्वेश्चन ये लेंगे. ओके, टेस्ट लेंगे. एंड सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट भी मैं कल से चालू करूँगा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस. सी दिस इज ऑल्सो योर सॉल्व प्रॉब्लम. दो सॉल्व प्रॉब्लम ही हम डिस्कस कर रहे हैं और अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सेम ही है. अब जस्ट उसको चेक कर लेना, मैंने उसे सॉल्व नहीं किया. ओके. बट द सेम वे विच आई डिस्कस similar type of problem will be asked in your exam. So see what is mentioning here, what are the data is given to you, right? The current transformer with a bar primary. See the question is discussed for bar primary and has a 300 turns in your secondary winding. The resistance and the reactance of the secondary circuit are 1.5 ohm and 1 ohm. So secondary resistance आपको दिया हुआ है. क्या होता है secondary resistance? So first of all इस यहाँ पे क्या दिया है, NP. NP कितना है, प्राइमरी इज बार प्राइमरी. एंड व्हाट इज NS इज नथिंग बट योर 300. अभी इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, टर्न्स रेशियो, राइट? व्हाट डू मीन बाय टर्न्स रेशियो फॉर CT इज NS बाय NP. याद रखना, टर्न्स रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर
any transformer, either is CT or PT. Now the secondary और क्या दिया है इसमें? Okay, including the transformer winding with 5 ampere flowing in the secondary current, secondary winding, and the magnetizing MMF is 100 ampere, and the iron loss is 1.2 watt. Determine the ratio of phase angle error. So now आपको आयरन लॉस दिया हुआ है 1.2 वैट 1.2 वैट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आयरन लॉस हो रहा है आपका 1.2 वैट. ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर, क्या क्या यूज़ कर सकते हो उसमें, आपको फॉर्मूला होगा आयरन लॉस का. इससे आप ये निकाल सकते हो आई ई, राइट. आयरन लॉस इज नथिंग बट योर आई ई इंटू ई पी, राइट. प्राइमरी वोल्टेजेस प्राइमरी साइड में ही ऑब्जर्व होगा. सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? आई ई. what is IE is nothing but your, this is your 1.2 watt. And what is EP? प्राइमरी वोल्टेज कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया नहीं है, राइट. सो इतना डेटा है आपके पास. सेकेंडरी करंट है एंड आई एम गिवन है. आई एम इज नथिंग बट योर 100 एम्पियर, राइट. So I m is nothing but your magnetizing mmf upon primary winding turns. Primary में लेकिन एक ही टर्न है, so you can say that I m is nothing but your magnetizing. Guys मेरे साथ सॉल्व करो, किसी को जम रहा होगा तो सॉल्व करो, राइट. प्राइमरी mmf, magnetizing mmf upon primary winding turns. So what is that? Is एमएमएफ दिया हुआ है आपको, राइट. और नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी में? 1 है. सो इट इज 100 एम्पियर. अभी आपके पास क्या निकल गया? आई ई आया, आई एम आया, आई नॉट आप निकाल सकते हो, राइट. व्हाट डू यू मीन बाय आई नॉट? आई नॉट इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ. ओके, आई ई तो अपना निकालने का ही हो ना आप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ई पी. हाउ टू फाइंड आउट ई पी? ई पी आप सेकेंडरी से निकाल सकते हो. सो सी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी है. सेकेंडरी बर्डन इम्पिडेंस आपके पास है क्या? कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज दैट? सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड रिएक्टेंस दिया हुआ है. सेकेंडरी करंट यू नो विच इज नथिंग बट योर 5 एम्पियर. तो सेकेंडरी इम्पिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी बर्डन इम्पिडेंस, सेकेंडरी सर्किट बर्डन इम्पिडेंस क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लो उसे. So this is nothing but a 1.5 square plus 1 ohm square, right? When you solve this, you will get 1.8 ohm. अब सेकेंडरी साइड का आपने बर्डन इम्पिडेंस निकाल लिया. कॉस डेल कैसे निकालोगे? कॉस डेल कॉस डेल इज नथिंग बट योर कॉस ऑफ डेल इज नथिंग बट योर दिस इज टोटल इम्पिडेंस विच इज नथिंग बट योर 1.8. और आपका रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा. रेजिस्टेंस कितना है इसमें? 1.5 ओम, राइट. सो इससे आपका सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर निकल गया विच इज़ नथिंग बट योर 0.833. इससे मैं साइन डेल भी निकाल सकता हूँ. साइन डेल जब आप इससे निकालोगे, डेल यहाँ से निकाल लो, फिर साइन डेल निकाल लो इससे. या फिर रिएक्टेंस डिवाइड बाय टोटल इम्पिडेंस. रिएक्टेंस कितना है इसमें? 1 डिवाइड बाय टोटल दिस 1.8. अब इससे सॉल्व कर लोगे तो आपको इतना मिलेगा.
ओके, सो नाउ दिस ये निकाल लिया आपने, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस। सेकेंडरी वोल्टेजेस कैसे निकालोगे? आपको इम्पीडेंस पता है, इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, तो आपको सेकेंडरी वोल्टेजेस आ जाएंगे। ई एस इज नथिंग बट योर 1.8 इंटू योर फाइव, फाइव इज नथिंग बट योर करंट विच इज 9 वोल्ट। ओके, ये आपका 9 वोल्ट हो जाएगा। नाउ this is your ES. And what is how to calculate this primary EMF? So primary EMF कैसे निकालेगा? EP is nothing but your ES. Yes, ES by, okay. So यहाँ पे देखो, वोल्टेजेस क्या रिलेशन है इसमें, देखो ES का EP का। नाउ ओके, यस गाइस, ई ES कैसे निकाल, EP कैसे निकालोगे आप? यस प्लीज रिप्लाई, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? ES by N, राइट? ES by N लिखेंगे। सो N यहाँ पे कितना था आपका? 300, राइट? 300, तो ES कितना है? ES आपने 9 डिवाइड बाय 300। ये रेफरेंस सर्किट यूज कर रहे हैं हम, राइट? और यू कैन से ट्रांसफॉर्मर उसका टर्न्स रेशियो का फॉर्मेट में लिख रहे हैं इसे। ट्रांसफॉर्मर का जो ये है कॉन्सेप्ट। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.03 वोल्ट। ओके, सो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज एंड प्राइमरी वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया हमने। एंड ओके, सो अभी क्या कैलकुलेट करना है हमें? हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेट बाकी है हमारा। ईपी फाइंड आउट कर लिया, तो आईई आप कैलकुलेट करो। सो आईई, हाउ टू कैलकुलेट आईई इज नथिंग बट योर 1.2 डिवाइड बाय 0.03। सो व्हेन यू सी हियर, एक ज़ीरो लगा दो, ये काट लो, 300, सो 40 एम्पियर, राइट? 40 एम्पियर आएगा। एंड वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपने निकाल लिया, आई निकाल लिया, इससे आप सो आपको फाइंड आउट क्या करना था? रेशियो एरर, डिटरमाइन द रेशियो एंड द फेज एंगल एरर। सो रेशियो एरर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? आर इज नथिंग बट योर, विच इज नथिंग बट योर एक्चुअल रेशियो, एन प्लस आई ई। सी यहाँ पे सब दिया हुआ है, सो ये वाला मेन फार्मूला यूज करना है, कॉस ऑफ डेल प्लस आई एम साइन ऑफ डेल डिवाइड बाय आई ऑफ एस। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, देन यू कैन टेक द स्टैंडर्ड रेशो विच इज़ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमको नॉमिनल रेशो के बारे में कुछ दिया नहीं है। नॉमिनल रेशो तो हम निकाल सकते हैं, टर्न्स रेशो के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है ना? दिया है क्वेश्चन में आपके? अगर नहीं दिया होगा ना, सो सी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट? नॉमिनल रेशो दिया हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, आपका जो भी टर्न्स रेशो है that will be equal to your nominal ratio. This is your assumption here. So I just written this statement in the absence of any information to the contradictory
we can take the nominal ratio to be equal to the turns ratio. So this is nothing but your kn which is equal to n, और कितना है n यहाँ पे हमारा 300. Now the percentage ratio error, percentage the ratio error is nothing but your kn. Kn nothing but your nominal ratio, right? And r is nothing but your actual ratio. So ये निकाल लोगे, nominal ratio तो 300 था, this is nothing but 317.6 divided by 317.6. ये कहाँ से आया 317.6? इससे आया. When you put that all this value, you will get 317.6. सिर्फ वैल्यू पुट करो, आपको ये रेशो मिल जाएगा. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट -5.54%. मैच कर लो आप इससे आंसर. एंड सेकेंड वन इज phase angle, phase angle theta. How to find out? 180 degree by 180 by pi, the same im cos of del minus ie sin of del divided by n of IFS. सो इसको भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे. सो यू विल गेट 2.34 डिग्री. सो ये हो गया इसके बारे में. ठीक है, ये इस द सेम वे ये जितने भी टर्म हमने डिस्कस किए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि किससे क्या निकलेगा. एंड एक बात का याद रखना, हम फेजर्स हम ले रहे हैं, राइट, कोई भी रेशियो में लेने के लिए. सो अगर ऐसे कुछ पैरामीटर दिया है तो उनका आप वेक्टर सम लेने का. ओके, एंड वन मोर थिंग, ये फाइंड आउट करने के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू, अदर इन टर्म्स ऑफ दिस डिग्री और टाइम में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो ये हो गया इसके बारे में. वन वन टेक वन एग्जांपल एज योर होमवर्क. और किसी को एमएसटी के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो. राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. The constant for three phase, three element integrating wattmeter is 0.15 revolution of disk per kilowatt hour if the meter is normally used with a potential transformer of ratio 3300,000 by 110 volt and the current transformer of ratio
11,000. This is 10,000. Okay, 10,000 by, sorry, this is nothing but your 1,000 by 10 ampere. Find the error expressed as a percentage of the correct reading from the following test. Following test figure for the instrument. टेस्ट फिगर छोड़ दो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो सर. इंस्ट्रूमेंट ऑन द, सो टेस्ट फिगर में क्या क्या है आपके, ये है 9 वोल्टेजेस. लाइन वोल्टेजेस इज नथिंग बट हियर 100 वोल्ट करंट. Current is nothing but here 6.25 ampere. Power factor is nothing but here zero point 0.9. So time to complete 40 revolution is nothing but here 66 second. So these are the data is given to you. You need to find out this. What you need to find out, percentage error here. Okay, and you need to find out the percentage error here. So how to find out this? See, you need to find out the percentage error. Find the error expressed as the percentages of your contact reading. So ये कैसे निकालोगे, ये आपको होमवर्क है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. You need to first of all find the actual, okay, actual energy consumed by the meter. ये आपका टेस्टिंग जैसा ही एग्जांपल है, बट आपको विदाउट टेस्टिंग नॉलेज से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट यूज करके. एनर्जी कंज्यूम, energy consumed ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड. कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी का फॉर्मूला, दिस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट योर पावर इनटू टाइम, राइट. सो दिस इज नथिंग बट योर पावर इनटू टाइम, बट यहाँ पे आप क्या सी टी पी टी यूज़ कर रहे हो. सो फॉर थ्री फेजेस विच इज़ नथिंग बट योर रूट थ्री तो रहता ही है, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस्फाई होता है, राइट. सो यहाँ पे रूट थ्री मिड टर्म आप ये देखो, इनटू टाइम भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे. ओके, जो रेस्ट क्वांटिटी है क्या हो जाएगा उसमें, जैसे अभी हमको हमारे पास सी टी है, देन सी टी रेशो, रेशो ऑफ सी टी. ओके, देन रेशो ऑफ पी टी, रेशो ऑफ पी टी, सी टी का रेशो पी टू का रेशो ले लिया, एंड वी वी एस आई एस कॉस फाइव इंटू वी एस आई एस कॉस फाइव कॉस्ट है. अब मेरे को बताओ सीटी का रेशो, सीटी के रेशो में क्या होगा, आई आई पी अपॉन आई एस. ओके, सीटी रेशो होता है आई पी अपॉन आई एस, ऐसा ही है ना. प्राइमरी करंट ऑफ सिटी अपॉन सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी,
Similarly, primary current of PT, primary voltage of PT upon secondary voltage of PT. अब डिनोमिनेटर में CTPT में वोल्टेजेस तो आएंगे, यानी वोल्टेज और करंट दोनों आएगा सेकेंडरी का. सो इट विल बी एडजस्टेड टू दिस फैक्टर, राइट. तो हम सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको. सो यू कैन से दैट अगर बोथ आर सेम, सो दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर. देन यहाँ पे तो प्राइमरी साइड ही बचेगा, प्राइमरी करंट और प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेजेस, राइट. सो वी आई कॉस फाइव हो गया, रूट थ्री वी आई कॉस फाइव एंड इनटू टाइम. सो द एनर्जी कंज्यूम बाय दैट टाइम इज नथिंग बट योर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, और उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट. बट हमारे सी टी के फॉर्म में दिया हुआ है, सी टी पी टी के, तो उसके फॉर्म में लिखा है. क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सी टी में एक्चुअल रेशो और नॉमिनल रेशो दोनों होता है. नॉमिनल रेशो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेटेड वैल्यू, एंड दिस ट्रांसफॉर्मर रेशो व्हेन एक्चुअल वैल्यू अंडर परफॉर्मेंस, राइट, जितनी भी रहती है वो यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आपके पास है, यू जस्ट फाइंड आउट, पुट दैट होल द वैल्यू एंड व्हाट इज द टाइम. टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास, 10 to power of 3 सेकेंड, यू कैन से दैट -3 सेकेंड. ओके, पर आवर के लिए हमने कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. सो दैट्स वाई 10 to power of -3 पर है. एक मिनट. ओके, कैलकुलेट करो वैल्यू डाल के. सो यहाँ पे सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पर आवर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. सेकंड कितना दिया हुआ है आपको, 66 सेकेंड ना. सो 66 डिवाइड बाई 3600 सेकेंड multiply by 10 is to power of -3. This is for the per hour calculation. And what is the value of the CT? CT ratio is, CT का कितना रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, is nothing but here 1000 divided by 10. PT रेशियो कितना दिया हुआ है, 33,000 divided by 110. VI V into I, this VSIS cos फाइव, ये कितना हो जाएगा, 110 इंटू 6.25. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 0.9. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे इसके साथ. सो कितना आता है, इसे कैलकुलेट करो और निकाल लो. इसमें से जितना भी आएगा वो किलोवाट आवर्स में हमने लिया है. ओके, नाउ एनर्जी कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा. अभी आपको यहाँ पे एक हिंट दिया होगा कि 0.15 रिवॉल्यूशन में आपका पर डिस्क कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 किलोवाट, राइट, किलोवाट आवर्स. सो इट मीन्स 0.15 रिवॉल्यूशन में आपका कितना एनर्जी जाता है, 1 किलोवाट आवर्स, राइट, 1 किलोवाट आवर्स. सो मेरे पास कितना है, 40 पे कितना जाएगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, राइट. सो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो रेशियो ले लो, एक्स बाय 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू 40/0.15. सो इसमें से मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल जाएंगी, राइट, विच इज़ 40 डिवाइड बाई 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोवाट आवर्स. सो यहाँ पे एक्स कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा. So once you calculate this x value, x percentage value, no, sorry, x value. So how to find out the percentage error? Percentage error, percentage error कितना हो जाएगा, जो आपका ये x वैल्यू आएगा, राइट, दिस वैल्यू माइनस योर, सो दिस x माइनस ऑफ योर
दिस एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम, लेट इट बी वाई। अगर मैं इसको वाई लेता हूँ, लेट इट बी वाई। ओके, सो एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लेना इसमें पुट करके वैल्यू। हाँ, अब एमएसटी के बारे में बात करूँ, सो इन एमएसटी, एमएसटी में आपका 20 मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके, 20 मार्क्स रहेंगे उसमें। आई विल सेट 12 मार्क्स फॉर योर न्यूमेरिकल्स एंड 8 मार्क्स फॉर योर थियरी। ओके, this is for your numerical and this is for your theory part। ओके, एंड नंबर ऑफ सेट कितने बनाना है वो मैं डिसाइड करूँगा। एंड ट्राई करना कि टाइम में सबमिट करो। ओके, अगर लेट सबमिट करोगे सो लेट सबमिशन विल कॉस्ट यू अ पेनल्टी ऑफ मार्क्स, राइट? पेनल्टी लगेंगे मार्क्स में। बस इतना है। और कल के सेशन में जितने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है ना, यूनिट 1 के, यूनिट 1 दैट इज़ एरर एनालिसिस, एंड यूनिट 2 जितने भी मैंने ट्रांड्यूसर के न्यूमेरिकल्स जो क्लास में कंडक्ट किए एंड प्लस सीटी के, उसको एक बार देख लेना। एमसीक्यू टाइप का थोड़ा सा स्मॉल टेस्ट रखेंगे जो कि आपके टीए डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो एमसीक्यू टाइप टेस्ट रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एमसीक्यू थियोरेटिकल भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो फुल ऑन एमसीक्यू ये नहीं रहेंगे न्यूमेरिकल। ओके, सो कल हम कंडक्ट करते हैं वो, जो जो एब्सेंट रहेगा उस टेस्ट में। सो मेक श्योर आपका जो एक टेस्ट में हो जाएगा वो ज़ीरो कंसिडर करूँगा मैं, राइट? मैं ऐसे दो टेस्ट कंसिडर करूँगा, टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2। ओके, this is your test। Okay, for this I will conclude this test comprised into 10 marks। 10 मार्क्स में आपके दो टेस्ट ले लूँगा, एंड जो 10 मार्क्स बचेंगे उसमें से फिर मैं आपका असाइनमेंट, ऑल असाइनमेंट प्लस आपका जो अटेंडेंस है, ओके, अटेंडेंस है, उससे कैलकुलेट करूँगा। सो आपके जो टेस्ट, जो दो टेस्ट रहेंगे उसमें 10 मार्क्स डिसाइड करेंगे। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग एमएसटी लेक्चर और एनीथिंग एल्स? ओके गाइस, you can learn now, thank you।